नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। तो दिल्ली में मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस है, जिसमें पीएम मोदी ने स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की है और पीएम मोदी आज मिशन मौसम का शुभारंभ कर रहे हैं। आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे पीएम मोदी। Let's extend a warm welcome to him. And we also extend a very warm welcome to Ms. Celeste Saulo, Secretary General, World Meteorological Organization. Let's extend a round of applause and welcome her. देवियों और सज्जनों, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं एक ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ और स्थापना दिवस। It is truly my honor to welcome you all to this historic and momentous occasion, the 150th Foundation Day of the Indian Meteorological Department. And today we celebrate a century and a half of excellence, innovation and unwavering service to the nation. Today indeed is a historic day as IMD celebrates its 150th anniversary very fittingly on Makar Sankranti, marking the end of winter season and beginning of sun's northward journey. Today's celebration coincides with the festive mood of the entire nation, ladies and gentlemen. And we are very, very grateful for the presence of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has been an enduring source of inspiration for progress and development. IMD's 150-year journey has been marked by significant advancements in meteorological science and technology, beginning with cyclone warnings and monsoon forecasts during the British era, and has since evolved into a modern organization using advanced technology to provide vital services in weather forecasting, climate research, and disaster management. With that, एक बार फिर हम बहुत आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के। Thank you very much, sir. आपकी सोच, आपका समर्पण और आपका दृढ़ निश्चय हमें एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत की ओर प्रेरित करता है। और इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी द एस्टीम्ड सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर एम रविचंद्रन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन से सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान करें, अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, as a token of our gratitude and admiration for his unwavering dedication to the nation's progress, may I request the respected Secretary, sir, to kindly present a memento to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And with that, sir, I request you to please present a token of our appreciation and gratitude to the Honorable Minister of State for Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji, whose leadership continues to guide us forward. And finally, may I request the Secretary to extend a warm and gracious welcome to the Secretary General of the World Meteorological Organization, the distinguished Ms. Celeste Saulo, who has joined us for this momentous occasion. Thank you very much, Dr. Ravichandran, for doing the honors. And with that, ladies and gentlemen, as we begin, I would like to begin with a Sanskrit shlok, which says, Yatha Pinde Tatha Brahmande. Yatha Pinde Tatha Brahmande translates to, as is the microcosm, so is the macrocosm. This profound concept from Indian philosophy reminds us of the intricate relationship between the natural world and human existence. The India Meteorological Department has been instrumental in decoding this relationship, helping us understand and prepare for the ever-changing dynamics of nature. और इसी भावना के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटरोलॉजी डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा स्वागत भाषण देने के लिए। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, Honorable Secretary General of World Meteorological Organization, Professor Celeste Saulo, distinguished invitees. हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, आज दिल्ली में मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की है।
देखिए बिल्कुल, और ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है भारत मंडपम में। काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, उससे जुड़ी चुनौतियां और जिस तरीके से यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर एक खास कार्यक्रम है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बड़े मैसेज देने वाले हैं। ये इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो 150वां स्थापना दिवस समारोह है, इसमें मिशन मौसम का शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी IMD विजन 2047 दस्तावेज वो जारी कर रहे हैं। इसमें जो उपस्थित जनसमूह उनको संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम इसलिए भी क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए एक जो हाल की मौसम से जुड़ी हुई चुनौतियां रही हैं और जिस तरीके से उस परिप्रेक्ष्य में कई यहाँ पर चुनौतियां हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर देखने को मिली हैं, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हाल के दिनों में इनके मद्देनजर आधुनिक उपकरणों के जरिए सटीक मौसम पूर्वानुमान लगाए हैं। लिहाजा उस नजरिए से भारत ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है, खासतौर से अपने उपग्रह के जरिए, अपने जो अत्याधुनिक उपकरण है उसके जरिए मौसम का सही सटीक अनुमान लगाना संभव हो पाया है। लिहाजा इसमें जो यहाँ पर भारत मौसम विभाग और उससे जुड़ी जो चुनौतियां हाल के दिनों में देखने को मिली हैं, तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ हो रहा है। और इसमें लक्ष्य ये है कि अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन और अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों का वो बेहतर उच्च स्तरीय क्षमता हासिल करना है। लिहाजा ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। और IMD विजन 2047 जो दस्तावेज है वो मौसम के पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन उसकी जो जुड़ी योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं एक नए लक्ष्य हासिल करेगा। लिहाजा इस कार्यक्रम के काफी उद्देश्य हैं और इसके जरिए जलवायु परिवर्तन, उसकी चुनौतियों को लेकर भी लगातार जो मौसम विभाग की नजर रही है वो निश्चित तौर पर ये काफी कारगर रहेगी। और इसलिए 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम पर तमाम नजर लगी है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।